Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Mail Merge in Word 2010. Chapter outline, creating a mail merge document, creating recipient list, inserting merge fields, viewing the merge data and printing the letters. In business as well as in personal matters, it is often required to send letters with similar information to different people. The letters require the name and address of each recipient to be printed on the top. Changing the address each time would be a very long process and a wastage of time and effort. Mail merge feature of Microsoft Word is used to combine a data source which contains addresses of all the recipients with the main document. It saves our time and energy to send letters to multiple addresses. अच्छा देखिए क्या होता है कि बिजनेस में और यहाँ तक कि पर्सनल मैटर्स में भी हमें कुछ लेटर्स होते हैं जो हमें जिसमें सिमिलर इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे लोगों को सेंड करना होता है एक टाइम पे. तो बस लेटर्स में क्या होता है कि जो नेम और एड्रेस होता है हर रेसिपिएंट का वो प्रिंटेड होता है आपका टॉप पे. तो एड्रेस हमें चेंज करना पड़ेगा बार बार, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, टाइम का काफ़ी वेस्टेज हो जाता है, एफर्ट बहुत लगता है. तो जो मेल मर्ज फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इससे हम क्या कर सकते हैं कि डेटा सोर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं जिसमें एड्रेसेस होंगे सारे रेसिपिएंट्स के मेन डॉक्यूमेंट के साथ. इससे हमारा टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और मल्टीपल एड्रेसेस में हम सेम लेटर को भेज सकते हैं. ओके. डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ अ मेलिंग लिस्ट. द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ टैबुलर फॉर्म along with the field names. For example, roll number, name, father's name, phone number, email, etc. The data source is associated with the main document so that its field names can be used in the main document and it becomes easy to merge addresses with the main document. डेटा सोर्स में आपका क्या होता है, मेलिंग लिस्ट होती है. डेटा आपका ऑर्गेनाइज होता है टेबुलर फॉर्म में, उसमें फील्ड्स नेम होते हैं, जैसे मतलब कि रोल नंबर है या आपका नेम है, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, ये सब. तो डेटा सोर्स जो है आपके मेन डॉक्यूमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है. ओके. सो दैट इसका जो फील्ड नेम है उसको यूज़ किया जा सके मेन डॉक्यूमेंट में और फिर ये एड्रेसेस को मर्ज करना काफ़ी ईजी हो जाता है मेन डॉक्यूमेंट के साथ. राइट. मेन डॉक्यूमेंट, इट कंटेन्स द टेक्स्ट दैट वी विश टू सेंड टू द रेसिपिएंट. मेन डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट होता है जो हम रेसिपिएंट को भेजना चाहते हैं. ओके. मर्ज फील्ड, it is a data item such as name, father's name, phone number, email, etc., which instructs Microsoft Word where to insert the data source, names or addresses, information in the main document. Mail merge involves 3 basic steps: creating a main document, specifying a data source, merging the data source with the main document. देखिए अब आपका मर्ज फील्ड क्या होता है, ये आपका डेटा आइटम होता है, जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर्स नेम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्ट्रक्ट करता है कि कहाँ पे डेटा सोर्स को इंसर्ट करना है, मीन्स नेम या एड्रेसेस को. ओके. तो मेल मर्ज में आपके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं. तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट. टू क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स. Create a new document and type a letter or open an existing letter in Microsoft Word that we want to send to different people at their addresses. Click on the mailing step. In the Start Mail Merge group, click on the Start Mail Merge drop-down arrow and select the step-by-step merge wizard option. The Mail Merge task pane appears on the right side of the application window as shown in figure 4.4. Now select the Letters radio button under the Select Document Type section. Click on Next. Starting Document Wizard Type under Step 1 of 6 section at the bottom of the task pane. A new task pane appears on the screen as shown in figure 4.5. Choose the type of setup for your letters. Click on the Use the Current Document radio button under Select Starting Document section. Click on Next. Select Recipients under Step 2 of 6 section. Another task pane appears showing options for defining a recipient's list. Okay. तो देखिए मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले आप या कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, लेटर टाइप करना, या फिर कोई एग्जिस्टिंग लेटर हम ओपन कर सकते हैं जिसको हम डिफरेंट लोगों को भेजना चाहते हैं. ओके. तो हम एक एग्जिस्टिंग लेटर को ओपन कर लेंगे. इसके बाद देखिए हम करेंगे क्लिक मेलिंग टैब्स. फिर आपका जो स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप है इसमें हम स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे. ओके. और फिर स्टेप बाय स्टेप मर्ज विजार्ड ऑप्शन को
चूज करेंगे। ओके ओके, अब आपके पास ये मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर हो गया है ना। इसमें आप क्या क्लिक करेंगे, इसमें लिखा हुआ है ना व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग फॉर, राइट। तो हम इसमें से लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन हम करेंगे क्लिक नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, इसके बाद एक न्यू टास्क पेन आपका अपीयर हो गया है, राइट। अब न्यू टास्क पेन में देखिए क्या है आपका, पहले तो आपको करना है टाइप ऑफ सेटअप आपके लेटर्स के लिए, तो आपने क्लिक करना है ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। ओके, फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। ओके, नेक्स्ट creating recipient list. To create a new mailing list, select the type a list radio button under select recipient sections in the mail merge task pane and click on the create option as shown in figure 4.6. The new address list dialog box appears on the screen as shown in figure 4.7. Click on the customize columns button to add or remove fields. Enter data in the respective fields and click on the new entry button located at the bottom left of the dialog box. Enter 4 records of your friends and relatives. Click on OK. You will get the Save Address List dialog box. Specify a name in the file name, a text box, and click on the Save button. The Mail Merge Recipient dialog box will appear as shown in figure 4.6. This dialog box displays the details of all the records added by us. To change any detail, we can select the data source and click on the edit button located under the data source box. When we are through, click on OK to confirm and close the window. Note that by default, tick marks are placed on the check boxes next to the data source field. It gives an indication that the records are selected. If you do not want to send the letter to a particular address, just click on that specific checkbox to deselect it. Click on OK. Now click on the next write your letter wizard step under step 3 of 6 section in the mail merge task pane. Okay. Now let's see हमें क्या करना है। रेसिपिएंट लिस्ट को क्रिएट करना है। ओके, उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यू मेलिंग लिस्ट को क्रिएट करना है। तो आप टाइप अ न्यू लिस्ट, ये जो आपके पास ऑप्शन है इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन क्लिक करेंगे क्रिएट ऑप्शंस पे, या आप चाहें तो एक एग्जिस्टिंग लिस्ट को भी आप यूज कर सकते हैं। आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं, राइट। अब देखिए, अब क्योंकि हमने टाइप न्यू लिस्ट को चूज किया था, नाउ अब ये देखिए न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। फिर हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज कॉलम पे। ओके, कोई भी फील्ड को ऐड या रिमूव करने के लिए अब देखिए एंटर करेंगे डेटा को, ये आपका जो न्यू एंट्री बटन है। अब इसमें हम कोई भी 4 रिकॉर्ड्स अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिख सकते हैं। ओके, और देन आप टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे ओके। ओके, अब आपके पास ये सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आ गया है। कोई भी एक नाम स्पेसिफाई करेंगे हम, ये जो आपके पास फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स है इस पर, एंड देन क्लिक करेंगे सेव बटन पे। ओके, अब देखिए अब आपका मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। इसमें जो भी रिकॉर्ड्स हमने ऐड किया उसकी सारी डिटेल्स आ रही है। ओके, अगर आप चाहते हैं इन डिटेल में कोई भी चेंज करना तो हम डेटा सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे। ओके, और इसके बाद एडिटिंग करने के बाद हम ओके कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट इसमें टिक मार्क्स हैं आपके चेक बॉक्सेस पे, है ना। ये इंडिकेशन क्या देता है, इसका मतलब है कि जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो सिलेक्टेड है। ओके, अगर आप नहीं चाहते कोई लेटर किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड करना, तो जस्ट आपने उस स्पेसिफिक चेक बॉक्स पे क्या करना है, क्लिक करना है, वो अपने आप ही डिसेलेक्ट हो जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे। ओके, देन ओके, फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट राइट योर लेटर पे। ओके, Smart tip. Field is a column in a data source that contains one type of information that is
name, address, city, etc. Record is a row on a data sheet. Number of fields make one record. अच्छा देखिए, फील्ड आपका कॉलम है डेटा सोर्स में, जो इसमें आपका एक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि नेम है या एड्रेस है या सिटी है, राइट. और रिकॉर्ड आपका रो है डेटा शीट पे, तो नंबर ऑफ फील्ड्स जो हैं वो बनाते हैं एक रिकॉर्ड को. ओके. फैक्ट फाइल. प्रेस टैब की टू मूव बिटवीन फील्ड्स व्हाइल टाइपिंग द इंफॉर्मेशन. देखिए, टैब की को प्रेस करेंगे जिससे कि आप फील्ड्स के में मूव कर सकेंगे while typing the information. Okay. Smart tip. The data source can be created in Microsoft Word database file, or it can be created in another application like Microsoft Excel or Microsoft Access. अच्छा, जो डेटा सोर्स है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डेटाबेस फाइल में, और इसको आप क्रिएट कर सकते हैं दूसरे एप्लीकेशन में भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, राइट. Fact file. You can select the use an existing list option under select recipients when the list of recipients already exists. देखिए, अगर आपके पास recipient की list already exist है, करती exist, तो आप इसका use कर सकते हैं. Use an existing list. Okay. Inserting merge fields. Place the cursor at the position where we want to insert the record fields. On the mailing tabs, click on the insert merge field button in the right and insert fields group. The insert merge field dialog box appears with a list of file names we have created. Click on the field name that we intend to add and then click on the insert button. Similarly, insert other fields into the document. Click on the close button. We will notice that the selected field names appear in our document horizontally. Separate the field names by pressing the enter key. Okay, अब आपको क्या करना है, merge field को insert करना है. सबसे पहले आप अपने कर्सर को उस पोजीशन पे रखना चाहते हैं जहां पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं रिकॉर्ड फील्ड्स को. ओके. अब देखिए, मेलिंग टैब्स पे जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन पे क्लिक करेंगे. अब देखिए, आपका ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, इसमें फील्ड नेम्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं. ओके. अब आप फील्ड नेम पे क्लिक करेंगे जिसे आप ऐड करना चाहते हैं, राइट. और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन एंड देन क्लोज बटन. अच्छा देखिए, अब ये जो सिलेक्टेड फील्ड नेम था ये हमारे डॉक्यूमेंट में हॉरिजॉन्टली आपका अपीयर हो रहा है. ओके. फिर फील्ड नेम को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग एंटर की. ओके. नेक्स्ट, viewing the merged data. We can check whether Microsoft Word has picked up the data source according to the merged fields or not by viewing it on the screen. Click on the preview results button in the preview results group on the mailing tab, or select the next preview your letters wizard step under step 4 of section. The first record will be displayed as shown in figure 4.11. Click on the next record button in the preview result group to view the next record of the data source. देखिए, अगर आप चाहते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने डेटा सोर्स को पिक किया है या नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द मर्ज फील्ड्स. ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए, आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट्स बटन पे, है ना. फिर हम सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स. अब देखिए, जो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है आपका डिस्प्ले हो रहा है. फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे जिससे कि हमें जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है डेटा सोर्स का वो मिल जाएगा. ओके. फैक्ट फाइल. Select from Outlook contacts. Choose this option under select recipients if you want to use an email address book in Microsoft Outlook. Okay. अगर देखिए, आप सिलेक्ट करेंगे select from Outlook contacts, इस ऑप्शन को हम चूज करेंगे सिलेक्ट रेसिपिएंट के अंडर अगर हम ईमेल एड्रेस को चाहते हैं यूज करना, email address book in Microsoft Outlook. Okay. Printing the letters. We can take the printouts of our letters with the merged data of our data source. In order to print the letters, follow the given steps. Click on the Finish and Merge button in the Finish group on the Mailings tab. Select the Print Documents option from the drop-down menu, or click on the next Complete the Merge wizard step under Step 5 of 6 section in the Task pane, and then click on the Print option under the Merge section. The Merge to Printer dialog box will appear. Define the desired print settings and click on OK. Now a print dialog box will appear. Define the print settings and click on OK.
The selected records will be printed separately along with the letter. Okay. अब देखिए हम अपने लेटर का प्रिंट आउट ले सकते हैं, ओके, विद द मर्ज डेटा ऑफ आवर डेटा सोर्स। तो लेटर्स को प्रिंट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या है, देखिए सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास ऑप्शन है फिनिश एंड मर्ज, फिर हम प्रिंट डॉक्यूमेंट्स को चूज करेंगे, फिर इसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट द कंप्लीट द मर्ज, ओके, फिर प्रिंट ऑप्शन। अब ये देखिए मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। अब प्रिंट, इसमें जो भी प्रिंट सेटिंग्स हमें चाहिए हम उसे डिफाइन करेंगे, ओके, देन हम ओके क्लिक करेंगे। अब ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है, इसमें प्रिंट सेटिंग्स जो भी आपको करनी है उसे डिफाइन करेंगे, देन ओके, ओके। अब आपके ये जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स है ये प्रिंटेड हो जाएंगे सेपरेटली विद द लेटर, ओके। Recap. The mail merge feature is used to send the same letter to a number of people at different addresses. The mail merge feature combines two documents. One is main document and the other is data source. The main document contains the text we wish to send to the recipients and the data source contains addresses of the recipients. Merge field is a data item which instructs Microsoft Word about where to insert the data source information in the main document. आई होप चिल्ड्रन आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।